मैं खड़े होके वहाँ पे उनको स्टेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को देख ही नहीं रहे, मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे। काफी स्मार्ट हो गए हम लोग। स्मार्ट नहीं होगा तो फिल्म में एज अ फिल्म मेकर फेल हो जाओगे ना, ऐसा। किसी को भी उड़ता तीर नहीं बोलना चाहिए ना। अमोल के लिए कैब बुक कर देते हैं। तू जैसे भी है तू अब भी गाड़ी में बैठेगी और हमारे साथ तू चलेगी। Hello and welcome to the new episode of the TCU Crew podcast. I have with me Mr. AJ sir once again, Mr. Ray once again, and for the very first time we have a guest who is Guest? not really a guest but is a guest. Is the guest here. Mr. Vinzi. नमस्कार। Hello. Hi. How are you? Good, thanks. How was your journey? Good. जर्नी कहाँ की? I hope you're talking आगे लाइफ about की journey. जर्नी या बॉम्बे से आगे How जर्नी? has your journey been from when you were a kid? Oh, that would ठीक that है, would मैं that हो would गया था। हो गया टाइम गाइस। that would be a separate episode. in अमोल के itself. लिए कैब बुक कर देते हैं। It's Plus, it won't be that interesting. So, नहीं ये तो आपका पर्सपेक्टिव है. oh, fair enough. Thank you so much for having me. Looking forward to sharing my knowledge. नहीं इतना फॉर्मल नहीं मिलते, अमोल ही है। So because all three of you guys are here, we thought that we might discuss something that all of you were involved in, which is the Suzuki Avnis appraisal ad films. The great thing about this ad film, these ad films are that all of them are reels. तो एक बार discussion शुरू करने से पहले I think there should be a supercut of all of these reels. सुपर कट करते हैं। Supercut. Let the audience have a look what we made. So that the audience knows Knows what we're What we're talking gonna about. talk about. सुपर कट करते हैं। So before we talk about everything, first I would like to know कि ये काम हमको कैसे मिला? गुड फ्रेंड निनाद के पास क्रिएटिव खिचड़ी करके एक एजेंसी है। दे गॉट इन टच देयर फ्रेंड्स एंड दे गॉट इन टच एंड दे वर लाइक कि टू व्हीलर ब्रांड के लिए कुछ एड फिल्म्स बनानी है। एंड सो निनाद एंड उनको दे हैड अ रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोमोटिव स्पेशलिस्ट्स। सो निनाद वाज लाइक यस आई नो जस्ट द गाइज। सो क्रिएटिव खिचड़ी गॉट इन टच विद अस। उन्होंने अपना काम देखा, उनको काफ़ी मज़ा आया एंड दे वर लाइक डायरेक्टली ठीक है और लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस। हमारे पास स्क्रिप्ट सब आ चुका है, सब रेडी हो चुका है। वी जस्ट नीड यू गाइज टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक इट डाउन, प्लान एंड जस्ट गेट इट डन। सो वैसे काम आया था, काफ़ी अच्छे लोग, आई थिंक दीपक एंड हर्ष, किक एस गाइज टू वर्क विद। And thanks, Ninad. As I mentioned before, कि the idea of reels as an ad, like all of these are just reels that will not go on TV, people will scroll through. So like, were you comfortable? Were you welcoming of the idea? It's not that you have to reimagine advertisements into reels. Advertisements are all around you. There are hoardings, there are videos, there are prints. They're just different formats. It is just that जो audience है, उनका consumption for the better or whatever reasons has gone on to phones, which is reels. So advertisements have come down to reels, which means क्या कहते हैं उसको, जो एरिया को क्या कहते हैं, surface area to play with has been trimmed extensively. This is also debatable कि if it's for the better. For the better पता नहीं. It's for the convenience of the masses. Not even convenience. It is what the masses consume the most. It is the easiest format. कि हाँ भी everyone is on their phone. आप होर्डिंग्स कम देखोगे, लोग टीवी कम देखते हैं, फोन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. So it has become the medium of sort of advertising. And it is now that brands have started to realize कि इसमें कितना ज़्यादा potential है.
and again brands will just see an opportunity and try and capitalize on it. So they're like, there is so much screen time to be munched here कि guys अब advertisements को reels में बनाते हैं. So I think of course जैसा जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि you have always imagined advertisements to be horizontal because that is what I think filmmaking शुरू भी वहाँ से हुआ है. So anytime you say audio video it is just that by default you ask कि हाँ भाई एक टीवी बनाओ तो आपका टीवी 16:9 में बनता है. अगर आप 1995 है उसके पहले से हो तो शायद 4:3 बन सकता है. What the horizontal frame enables you to do is just build more world. There is more world building that you can do. आप ज़्यादा चीज़ें दिखा सकते हो. आप दिखा सकते हो कैसे टाइप के घर में क्या environment है, क्या weather है, क्या धूप है, क्या colors है, क्या scheme है. You have a larger canvas to paint. The moment you go vertical, it is so difficult to imagine कि how do you tell so much of it in such a compact क्या कहते हैं उसको स्पेस का फ्रेम भी नहीं उसको क्या कहते हैं एरिया बेटर वर्ड फॉर एरिया. अभी बेसिकली यही फिल्म को अगर हॉरिजॉन्टल में करना होता तो मैं गेस कर रहा हाँ ये 35 mm पे शॉट थे. आई थिंक हम सभी गेस कर लेंगे कि ये शॉट हम 35 mm पे इमेजिन कर रहे हैं, ये हम 85 पे इमेजिन कर रहे हैं. अब रील में वो भी एक स्पेशली मेरे लिए कि फक ये अब रीइमेजिन करना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब होता है. हाँ अभी ये कैसे फिट होगा सब कुछ, क्योंकि अगेन लैंडस्केप में एनवायरनमेंट जैसे दिख जाता है, पता चल जाता है कि इस एनवायरनमेंट में वर्टिकल में स्पेस ही कम है, चेंज हो जाता है. नहीं हाँ मैं एड्स देख रहा था तो उसमें लाइक अगर सब्जेक्ट खड़ा हो गया तो और कुछ दिख ही नहीं रहा है फिर पीछे. लाइक एक ऐसा लीफ दिख रहा है जिससे आपको पता है कि ही इज इन द आउटडोर्स. दैट इज इट. देयर इज नथिंग टू लुक एट अपार्ट फ्रॉम दैट. हाँ मतलब अगेन वही बिल्डिंग द एनवायरनमेंट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दैट सेटअप कि आप कहाँ पर हो, क्या चल रहा है. बिकॉज एड्स में आपके पास 10 या 15 सेकंड है, उसमें आपको पूरा स्टोरी टेलिंग खत्म करना है. उसका बैकग्राउंड क्या, कॉन्टेक्स्ट है, किधर आया है, क्या प्रॉब्लम है, क्या पे ऑफ है. सो जैसा सर कह रहे थे कि फ्रेम में कम चीज़ें दिखानी पड़ती है एंड आपको सब ऐसे इमेजिन करना पड़ता है, उसमें पूरी कहानी बतानी पड़ती है. सो आई रिमेंबर इफ यू सी आवर एवनेस फिल्म्स, most of our locations are very layered. मतलब instead of showing चीजें साइड में हमने क्या किया, चीजें एक दूसरे के पीछे दिखाते हैं. That is the only way you can. हाँ. सो पहले लोगों को खड़ा किया, उसके पीछे कॉलेज का गेट डाला, उसके पीछे कुछ कॉलेज के बच्चे डाल दिए, पीछे कॉलेज का बिल्डिंग है. सो ऐसा आपको शायद लाइन में एक अंदाजा आ जाएगा कि हाँ ये कॉलेज के गेट के बाहर. वरना क्या एक वाइड शॉट लो, पीछे कॉलेज का बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाहर लोग खड़े. योर सेटअप बिकम्स दैट मच मोर इजियर. Visualization was a bit tricky. Fresh. It was Exciting, fresh. challenging. It was fresh. We have to think from a very foundational, basic point of view where the canvas is changed. You're an artist, you're a painter, you are probably an illustrator, Photoshop, whatever. You have a print ad campaign or a pamphlet or something. You are given a canvas. Now you have to compose your imagery or storytelling based on that. So those are the new and fresh things that we tried through this. It was a new form of storytelling. See, I cannot say it's superior or inferior based on our conditioning कि we like cinema this way. Okay, to each his own. Right. तो इसके बाद the process of visualizing the film would start, right? और उसमें फिर of course pitch deck बनता है. So how did you go about storyboarding the whole thing? The easiest way was again कि जैसा हमने Nexon के लिए किया था, storyboarding is key. The easiest thing is to draw stuff out. So हमने वही किया. They had about 10 films, and so we got all those 10 films storyboarded. हमारे पास scripts थे, हमने storyboards किए, and basically they were short films because reels है. So again time was around 30ish seconds, same advertisement like, and then we had at least like a rough idea कि कितने shots लगेंगे. It also helped us paint कि ठीक है हम लोग ऐसे ऐसे दिखाएंगे, ये सेटअप होगा, लोग ऐसे ऐसे खड़े होंगे. अगेन हमने फिल्म शूट करने के पहले एक रफ स्केच बना लिया कि फिल्म कैसे दिखने वाला है. You guys told me that you also did Recce, and then after that also some of the storyboards are done, and some of the storyboards were done before the Recce happened. We had about 12 odd films to do. So of course Recce was super important.
हम लोग ने ये फिल्म बहुत ही सुंदर इंटरेस्टिंग जगह में किया विच इज़ मगरपट्टा इन पुणे। मगरपट्टा में काफ़ी फिल्म शूट होती है। मैंने बचपन में यामी गौतम was in a car ad. I don't remember that car ad. But as I was in Magarpatta and मैंने देखा था ऐसा first time on a low loader the car was going around and उसमें ऐसा यामी गौतम she is pretty so you can register her from a distance. So I'm like wait ये तो फिल्म यामी गौतम में छोटा था. So and हमें ये शूट पुणे में करना था and we decided मगरपट्टा is great. After all these years सही है हम भी मगरपट्टा में शूट करेंगे. बस यामी गौतम नहीं थी। यहाँ भी गौतम नहीं थी ये। I think Next time. मगरपट्टा में ही अंधाधुन भी शूट हुई। Like I think Yes, श्रीराम राघवन yes, mostly correct. shoots his Yes, all of his correct. films पुणे there. के Correct. काफी जगह पे, Correct. मोस्टली इन yes. पुणे या। मतलब I grew up very close to मगरपट्टा, so ऐसा मगरपट्टा काफी आना जाना होता था. It was like सो a रेकी hot place. उसने ऑलरेडी करके रखा हुआ था। So- उसने शूट भी देख लिया था कैसे होता है। कि guys चलो मेरे को पता है मैं रास्ते दिखाऊंगा. मेरा तो देखा। अब सिर्फ करना था तो हम शायद मगरपट्टा चले गए। ऑल्सो मगरपट्टा का एक और ये था कि हमको 12 फिल्म्स करने हैं और सब कुछ एक ही विसिनिटी में चाहिए। काफी versatile location था काफी वो. वर्सेटाइल लोकेशन है वो मगरपट्टा। Because the biggest challenge was to do it in one day. यस So every film location had to be very So close to each other. yeah, So setup change। हमने क्या डिसाइड किया कि हम लोग 2 टीम में डिवाइड हो जाएंगे. तो 12 films 6 I would do 6 Winzy's unit would do and क्या करेंगे कि मगरपट्टा में बिकॉज देर आर रोड्स देर इज कॉलेजेस देर आर प्लेसेस देर आर पार्किंग लॉट्स एंड IT एवरीथिंग सो buildings. एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर ऑल द 12 डिफरेंट फिल्म्स वर देयर. सो हमने ठीक है. एंड इससे एक और फायदा क्या होगा इज दैट हम लोग सब आसपास रहेंगे एंड ये मतलब we were going to shoot 12 films, which is a lot of films, a lot of characters, a lot of costumes, a lot of extras, a lot of manpower in general. So इसके लिए रेकी बहुत important बन जाता है because 2 टीम सेम जगह पे कुछ common resources share करते हुए but ऐसा autonomously operate करने वाला था. So before we even went on to storyboarding, we were like let's just go there, visualize it in our head and then हम लोग उसको अपने हिसाब से storyboard करेंगे. So we went, हम लोग ने मगरपट्टा हम लोग काफ़ी बार गए सो हमको पता थी क्या क्या जगह है. Because we were brainstorming while on the recce, because most of the brainstorming happens while on the recce with different departments giving their best inputs. That is how the whole things come together. It's not just us. Without the team, without the creative inputs from say the production designer or the art guy, it's just impossible because we can't think everything, because we have already a lot of things in mind in terms of the lensing, the camera, the composition and everything, and they help us know, and there is a fine balance that we try to make between departments. इसकी इतने टाइम में इतने रिसोर्स में ये पॉसिबल है क्या? एज अ डायरेक्टर आई विल डिमांड कि मेरे को चाहिए, बट द आर्ट गाय और एनी डिपार्टमेंट विल से कि दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस आर द टेक्निकल डिफिकल्टीज यू विल फेस ऑन द डे, एंड देन टेकिंग दिस इनपुट्स टू एंड फ्रो हैपेंस, एंड देन वी ऑप्टिमाइज द information on the table and try to be efficient, and only then you can be effective delivering 12 films in a day. रेकी के टाइम पे हमने हमारा बेस डिसाइड कर लिया था। हाँ. ठीक है, अभी 200 लोगों ने, सबको बेस तो लगने वाला है 200 लोगों के लिए, और वो पूरा एक सर्कल के अराउंड सर्कल्स है, बेसिकली एक सर्कल है जहाँ पे गार्डन है। ठीक है, पकड़ लो, उसके बाहर अब शहर बनते जा रहा है। ठीक है, उस सर्कल में बन रहा है और उसको हर जगह हर साइड से रोड्स जा रहे हैं। Wait, so the easier picture is imagine a big circle, उससे 4 roads निकल रहे हैं. Now every road that goes out leads to another huge a bigger gigantic circle. circle. हाँ. So everything is symmetrically constructed. So after a point इधर था ये बस स्टॉप पे शूट करना है, नहीं वो वाला हाँ सो वो कंफ्यूजन बेसिकली क्रिएट हो गया था वहाँ पे, हो बीच में तो हो रहा था, आई एम श्योर। ये लाइक क्या होगा, एक और राउंड मार लेंगे ना, एक same और जगह round पहुंच मार जाएंगे. लेंगे। एक सवाल ये था, वो स्टूपिड सा सवाल भी हो सकता है, लेकिन कुछ स्टोरी बोर्ड्स आपने रेकी के बाद बनाए कि जस्ट विजुअली आपने देख लिया कि हाँ ये दिस प्लेस लुक्स लाइक दिस. सम ऑफ द फिल्म्स वर नॉट वर स्टोरी बोर्डेड बिफोर द रेकी, तो हाउ डज दैट हैपन? सो जहाँ जहाँ पे हमको फ्रेम्स मिले, जैसे कॉलेज का हुआ, विंजी के बस स्टॉप्स थे, सो वहाँ पे हमको दिख गया
एंड वी वर लाइक कि हाँ यहाँ पे एक आदमी बैठेगा, यहाँ पे ये होगा, उसको स्केच करवा लेते अपने एंगल, फ्रेमिंग, मैग, उसके हिसाब से. एंड कुछ कुछ स्टोरी बोर्ड जो पहले होने थे वर सच एज द चाय वाला फिल्म, बिकॉज वहाँ पे ना हमको सेटअप बनाना था. देयर वाज नथिंग दैट एग्जिस्टेड. सो इट इज़ लाइक ठीक है, वी हैव अ वॉल, नाउ ऑल वी हैव टू डू इज डेक इट अप कि आपका चाय वाला कैसा होगा, कहाँ पे लोग बैठेंगे, कहाँ पे बाइक होगी. सो हमको चाय वाला मिला नहीं, सो वी क्रिएटेड दैट एंटायर स्टॉल देयर. एंड उसको ही सिर्फ पहले ड्यूरिंग स्टोरी बोर्ड बोला कि हाँ यहाँ पे चाय वाला होगा, दिस विल बी द फ्रेम, उसका आगे बाइक, उसके पीछे लड़का लड़की, उसके पीछे चाय, साइड में लोग बैठे, पीछे एक चाय वाला, ये आपका ओपनिंग फ्रेम होगा, खत्म. वो स्केच करवा लिया, ऑन द डे ऑफ द शूट वही सीधा बनवा लिया हमने. So some of these films which had setups that had to be pre-visualized, वो पहले हो गए. Some of the films which we were sure कि हाँ ठीक है इसको visualization को ज़रूरत नहीं, because the location or the setup was readily available, like either the roadside or जैसे traffic jam. अभी traffic jam आपको sketch ही करना पड़ेगा, मतलब you can visualize the road but it will have to be sketched. और उसके बाद भी आप जब shoot करोगे it will be an attempt to recreate that sketch. Yeah, just adding to the point over here, we were saying there's a to and fro that happens, keep happening before the recce, and after the recce, there will be what do you call it? A concoction of things that come together. So, just say for example, chai ka setup is gonna be the same everywhere. Wherever you see, it has to be the same, right? But we decided to keep it there because it was right next to the college gate, where there's another setup that is going to happen. सो जो भी सेटअप्स शेयर कर रहे थे, इट वॉज हैज़ टू बी क्लोज, राइट. सो वहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पे गेट का सेटअप तो था ही. सो जस्ट इफ यू पुट द कैमरा फ्रॉम हियर टू हियर लाइक 10 meters, देयर वाज अ चाय सेटअप. सो द मूवमेंट एंड द सेटअप चेंज फॉर द गैफर्स, फॉर द लाइट टीम, एवरीवन इज ऑप्टिमाइज्ड 10 feet. 10 feet पे. 10 feet. So like कैमरा यहाँ पे घुमाएगा, there is this gate का setup. So 2 films at one space. So all the trucks, 1 ton, 1.5 ton of trucks and the equipments and the gears that comes, that loading time, unloading time has to be accounted for. Every time we have setups and changes. So apart from shooting time, rolling time, there is other different times that goes into the timetable and the schedule. And based on that, we have to maximize the options that we have. Like we have very limited options. If you are going for an artificial setup, why not do it near the natural setup which cannot be changed? रेकी पे हमने लोकेशंस भी डिसाइड किए. रेकी पे कौन से टाइम पे क्या फिल्म्स हमको शूट करना है वो भी उसी दिन, मतलब आई थिंक हम वापस गए थे रेकी पे. हम लोगों ने एक बार शाम को किया था, एक बार, हाँ अगले राइट दिन हमने दिन में जाके राइट. रफली एक हाँ. क्या टाइम पे सनपाथ ट्रैक कर तो हमने, हाँ, तो हमने 2 बार रेकी किया था. एक सुबह के टाइम पे किया था और एक शाम के टाइम पे किया था. सो सारे फिल्म्स भी ऐसे अरेंज किए, मतलब प्लान किए थे, लोकेशन भी ऐसे प्लान किए थे कि ये पास पास में होगा. फिर यहाँ से फॉर एग्जांपल कॉलेज और चाय साथ में हो गया, वहीं से लिटरली 500 मीटर्स पे हमने ट्रैफिक जैम प्लान किया था. फुल कैनोपीड था, तो हमको पता है अगर हम नून में भी शूट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि हमको डैपर लाइट आने वाला है और ट्रैफिक के अंदर लाइट करना था. तो खाली सब्जेक्ट को जो लाइट करना था उतना लाइट अंदर बाहर मैंने होके. सोचा था कि ऑटो रिक्शा के अंदर कैसे पहुंचोगे. And since we only had one day, so we have to make do with all the bad lighting conditions that occur between 10:30 to 2. So वहाँ पे वो डैपल वो डिसीजन मेकिंग में ये फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है कि किस फिल्म को, लाइक वी हैव टू ट्रीट ईच ऑफ द फिल्म वेरी सेपरेटली, कि इस फिल्म में क्लोजअप स्किन बहुत दिखने वाला है या बैकग्राउंड कितना प्रिटी दिखाना ज़रूरी है. सो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट फिल्म्स वर, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक वाले में इट इज़ वेरी हार्श एंड हसल एंड बसल, और वहाँ पे कैरेक्टर्स बाइक और फुल गियर्स में है, रिक्शा के अंदर है, जहाँ पे वो धूप में चल के ऑफिस गोअर है, जो धूप में चल रहा है, पसीने आ रहे हैं उसको, सो उसको बैड लाइट में शूट करना एक नेचुरल डिसीजन था. और वैसे एक बंदा है जो टैक्सी के लिए कॉल कर रहा है, तो उस वो भी खूबसूरत वादियों में ठंडी हवा खाते खाते करते वक्त मज़ा नहीं ले रहा है, उसको भी धूप लग रही है. तो वो एक नेचुरल डिसीजन है कि उनको बैड लाइट में करने दो. और जहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रदर का फिल्म, वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी बैड लाइट की, वहाँ पे गुड लाइट चाहिए था, स्किन टोन बात कर रहे, एक वार्म मोमेंट था. तो वहाँ पे फिर हमने उस तरीके से उसको फर्स्ट फिल्म का डिसीजन किया कि वो सन वहाँ पे रहेगा, मॉर्निंग गुड लाइट में उसको वैसे शूट करेंगे. सो लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग is influenced by these factors also. Having said that, you also have to take into consideration the plan Bs also. Because as you said, more than 200 people were on the set. The coordination required is of a different level. And since there are so many variables, you have to accept that things will go haywire here and there, up and down. You cannot control everything. And that's where your management, taking decisions, taking calls, saying yes or no to
each of the different departments comes into play. Right, that follows up into my next question ki one day, just one day. It's not one day, it's one shift, day shift, morning to evening. Yes. We do not have, none of the films were shot in the night. After the sun sets, we cannot shoot anymore. So it's just one shift, morning 6 to evening 6. And in one day you have to shoot 12 reels. How did you go about it? Name of the game is efficiency. We focus on that optimization. अभी जितने भी डिस्कशन हुआ उसमें HODs, टू एंड फ्रो, इंफॉर्मेशन ऑप्टिमाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, लाइट्स और वो सब, तो हमने जो स्केड्यूलिंग था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल कि सुबह से लेके यहाँ तक 2 यूनिट्स में डिवाइड करने के बाद 6 फिल्म्स यहाँ बनेंगी, 6 फिल्म्स यहाँ पे शूट होंगी. स्टोरी बोर्डिंग हो चुकी थी. शॉर्ट सेटअप इन द सेंस लाइट मूवमेंट, क्योंकि लाइट्स जहाँ धूप इतनी थी, बैड लाइट्स में भी काफ़ी शूट करना था, तो बड़े बड़े 20x20 का स्कीमर्स थे डिफ्यूजन के लिए. तो आर्टिफिशियल लाइट पॉसिबल नहीं था बिकॉज ओवर पावरिंग सन वुड रिक्वायर 6Ks एंड सन्स एंड जो पॉसिबल नहीं था सेटअप. इट हैज़ टू बी अ मूविंग सेटअप. सो लाइट्स भी हमको उस हिसाब से एजे सर से कोऑर्डिनेट करके वैसे चूज़ करने पड़े जहाँ पे एज मच एज पॉसिबल नेगेटिव्स, लाइट कट्स और डिफ्यूजन से काम हो जाए. लाइट सोर्स का, क्योंकि रास्ते के बीच बाजू में बस स्टॉप बना के शूट कर रहे हैं, वहाँ पे लाइट सोर्स का तो सोचना ही डिफिकल्ट था. तो जेनी सेट करना हो या कुछ भी करना हो तो उसका भी टाइम अकाउंट करना था. तो ये सारा सेटअप टाइम, अनलोडिंग टाइम, ये सब कैलकुलेट करके शॉर्ट डिवीजन में जाके सुधांशु को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा. उस पूरा टाइम लगा रहा सर के साथ भी. और स्केड्यूलिंग में ये सेटअप से ये सेटअप में जाने का आधा घंटा 30 मिनट्स आपको मिल रहा है. सो ही वॉज कीपिंग अ चेक ऑन ईच ऑफ अस कि आपके पास 11 o'clock तक तो 11 o'clock तक ही टाइम है, बिकॉज उसको 11 to 11:30 में जो अगले लोकेशन पे जो पूरा तामझाम है, पूरा ट्रक पे लोडिंग करके वहाँ पे जाके अनलोड करके वो रेसिपी जो सर ने क्रिएट किया था कि यहाँ पे लाइट्स नेक्स्ट और 20x20 का स्कीमर जहाँ रहेगा वो लगाना, उसका सेटअप टाइम, वो सब कैलकुलेट करना और उसको स्केड्यूल में डालना और मेक श्योर करना कि वो फॉलो हो रहा है थ्रू आउट. कहाँ कहाँ हो पाया, कहाँ कहाँ नहीं हो पाया, वो हम आगे बताएंगे. लेकिन जो एक दिन में 12 फिल्म करने का जो क्वेश्चन था आपका, वो वहाँ पे सॉल्व होता है कि ये स्केड्यूलिंग सोच समझ कर, जस्ट बोलने के लिए नहीं कि आपके पास 2 ही घंटे हैं, आपको सच में 2 घंटे लगेंगे कि 1.5 घंटे लगेंगे. अगर यहाँ पे इतना लग रहा है तो आप कहीं और किसी और फिल्म से टाइम मांग रहे हो. सो आपके पास है उतने ही घंटे, बट आपको फिल्मों में से आपको टाइम अलॉट करना है. अब वो कहाँ करोगे, कैसे करोगे, वो इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था. एंड दैट्स हाउ वी स्केड्यूल्ड एवरीथिंग एंड ट्राइड आवर बेस्ट on the day of the shoot to actually accomplish that. I'll like to give the audience a spoiler alert कि you guys were not on schedule. है ना? You told me कि 7:30 पे कुछ shoot शुरू होने वाला था, which started at what 9:30. हाँ, सो इसे लास्ट टाइम यह मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी शूट विदाउट चैलेंजेस चालू नहीं होता है. सो सेम इट हैपेंड हियर ऑल्सो. we were there on time, everything was, I think हमको लग रहा था कि सब कुछ टाइम पे जा रहा है. फिर कैमरा थोड़ा लेट हो जाता है, फिर क्लाइंट का कुछ रिक्वेस्ट था लास्ट मोमेंट पे नंबर प्लेट्स को लेके, सो वो रिक्वेस्ट फुलफिल. तो हमारा स्टार्ट ऑफ द डे हमारा प्लान था कि गुड लाइट में हम लोग काफ़ी सारा ट्रैकिंग शॉट्स लेंगे, पैक शॉट्स लेंगे. तो अब वो राइडिंग भी नहीं हो रही है. अब या मतलब जो प्लान किया था अब दिन वैसा स्टार्ट ही नहीं हुआ है. सो जो हम मेल पे लिखते हैं ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, वो प्रैक्टिकल होता है कि वी कुडंट जस्ट फोरसी कि ये नंबर प्लेट का ये बहुत ही ट्रिवियल सा दिखने वाला इशू आएगा जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते बिकॉज वो क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आया. एंड वी हैव टू टेक इट सीरियसली एंड मेक श्योर कि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पॉसिबल नहीं है, वी हैव टू मेक इट पॉसिबल. सो उसको उसके बेसिस पे ऑन द स्पॉट ऑन योर फीट यू हैव टू मेक अनदर डिसीजन विच इज गोना रिपल डाउन throughout all the 10,000 decisions that you have throughout the day and make sure that you're still by the schedule. सो ट्रैकिंग नहीं चालू हुआ तो हमने सोचा कि हम एवेनिस फिल्म्स कर लेते हैं, जो कॉलेज फिल्म और चाय टपरी वाला फिल्म था, क्योंकि लाइट के हिसाब से नेक्स्ट बेस्ट बेट वही था कि हम वहाँ पे जाके स्टार्ट करेंगे. हम वहाँ पे जाते हैं, हमने हमारा कैमरा रेडी है, हमारे एक्टर्स रेडी है, पर एक जो हमारा कैरेक्टर होने वाला था वो ही वॉज नॉट देयर बिकॉज बेसिकली ही वॉज लेट. हमको पता है कि अब सन ऊपर आ रहा है, हमने जो प्लान किया था वो अब फक होने वाला है.
एंड आई थिंक हम सब कॉल लगा रहे थे उसको. Okay, so how do you deal with this? क्योंकि अब like it's not on schedule. Your first film, your first session, your first schedule of your schedule is not on time. But still you guys shot everything, right? वो दिन के खत्म होने तक I think We managed to you managed to fix it yes. in between. Yeah. How did you manage to fix it? Like what actually goes on in this? Because it is a lot of decision making. रिसेंटली जैकी श्रॉफ ने इंटरनेशनल योगा दिवस पे एक चीज़ बोला था, लंबी सांस ले भिड़ू. तो सबसे पहले हम लोग लंबी सांस लेते हैं, अगर ठंडा ले, दिल पे हाथ रख के ऑल इज वेल. वो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट पैनिक कि भाई हाउ विल वी डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपोज आवरसेल्व्स एंड देन इम्प्रोवाइज. देन एट दैट जंक्चर जो स्टार्टिंग में इसने बोला कि दैट इज़ वाई वी वर कॉल्ड फॉर automotive expertise, right? That is where we have to prove our metal that we are worth a salt, okay? And वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस काम आता है. तो उस दिन पहला चैलेंज तो ये हुआ, तो हमने उस दिन इमीडिएटली डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट फिल्म है, जैसे ये जाके वो सेटअप रेडी कर दिया, बट वहाँ पे अनदर चैलेंज वाज वेटिंग फॉर देम, द एक्टर वाज नॉट ऑन सेट, एंड दैट एड्स टू द फ्रस्ट्रेशन. नाउ व्हेन यू आर डूइंग योर बेस्ट, अब बॉलर बेचारा बेस्ट बॉलिंग कर रहा है और वहाँ पे कैच छूट रहा है ना, तो जो बॉलर पे बीतती है वो बॉलर जानता है. बट एट द सेम टाइम बॉलर वो फील्डर से दुश्मनी नहीं कर सकता. वी स्टिल हैव टू वर्क एज अ टीम. यू नो, यू प्रोबेबली चेंज द फील्ड प्लेसमेंट, you don't remove him. So we do that. When he is not there, we make sure that the other setup, the forward setup that we call, जो अगले shoot का setup होने वाला है, तो if then we try to use that time to actually catch up on some other things that we couldn't give. कि चलो ये backlog है तो इसको हम लोग यहाँ पे fulfill कर सकते हैं. हम लोग ने बैठ के दोनों यूनिट्स को शेड्यूल किया कि ये फिल्म्स ये दोनों यूनिट्स ने डिस्कस करके टाइम स्लॉट्स ये रहेंगे, उस हिसाब से पूरे फिल्म्स के ब्रेकडाउन्स किए. एंड देन एक पॉइंट पर आई रियलाइज कि ये मेरा और सुधांशु का बात चल रहा है कि वी वर डिसाइडिंग कि सुधांशु कौन से साइड पर रहेगा. बट देन सुधांशु खुद ने वो ही सजेस्टेड कि आई थिंक मेरे को ना कुछ नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ बेस पे रहूँगा एंड आई विल जस्ट कीप स्विचिंग बिटवीन द टू ऑफ यू गाइस. आई विल जस्ट सेट एवरीथिंग अप फॉर यू एंड जस्ट मेक श्योर दैट दोनों साइड में सेट फंक्शन कर रहा है. इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज, बट सो इससे क्या हुआ ना, हमारा शेड्यूलिंग काफ़ी प्रॉपर था, काफ़ी टाइट था. इट वॉज वेरी वेल प्लान. व्हेन वी स्टार्टेड आवर डे वी वर श्योर कि हाँ वी विल एंड आवर डे सक्सेसफुली. बट नो शूट कम्स विदाउट चैलेंजेस. समथिंग एज सिंपल एज कि सामने का नंबर प्लेट हैड टू बी चेंज. इट वॉज अ क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो उस दिन सुबह आया था. एंड अगेन ये अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस था. सो वी न्यू कि सुबह का जो गुड लाइट है उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे. सो वी डायरेक्टली प्रोसीडेड कि ठीक है, वी नो आवर नेक्स्ट सेटअप, वी विल जस्ट हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर सो दैट द सन, आई थिंक वो पेड़ या जो बंगलोज थे उनके पीछे से जस्ट निकल आ जाए. सो दैट वी कुड, वो क्या था थंडर स्टैंड पे वो जायंट एज फक रिफ्लेक्ट अवेंजर स्टैंड. हाँ, सो वी वर लाइक कि 20-25 मिनट में विल स्टार्ट यूजिंग इट. सो अगेन जैसा क्योंकि हमने रेकी किया था, हमने अच्छे से प्लान किया था. प्लानिंग ऑल्सो लेड टू कि हमने अपने सारे सेटअप्स आसपास किए थे. सो हमने कॉलेज रेडी किया था, कॉलेज से 10 फुट में चाय टपरी था, उससे 500 मीटर पे ट्रैफिक था. एंड ऑल ऑफ दीज वर गोइंग टू गेट रेडी इन सीक्वेंसेस. सो इवन बाय द टाइम वी गॉट टू द कॉलेज गेट, जो आई थिंक हाफ एन आवर 1 घंटे बाद होने वाला था, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी टाइम गया, फिगरिंग आउट कि क्या करना है, नंबर प्लेट्स कहाँ से आएंगे, ये सब. तब तक वो सेटअप रेडी था. मीनवाइल वी ऑल्सो हैड द चाय वाला सेटअप ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, पेंटिंग वेंटिंग हो रहा. सो इवन व्हेन द एक्टर वाज लेट, अब कह रहे थे हम क्या करने वाले थे, हमने दोनों को साइमल्टेनियसली अप्रोच किया था. आई रिमेंबर क्योंकि वो एक्टर नहीं आया था, सो वी फिनिश्ड ऑफ ऑल द शॉट्स दैट डिड नॉट इन्वॉल्व दैट एक्टर. वी डिड नॉट वेट, वी वर लाइक ठीक है, लाइक विंजी सेड, ब्रीथ, फिगर आउट नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, बिकॉज रुकना मना है. यू हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. सो थैंकफुली वो आ गया. The other best option was to replace him altogether with one of the extras. Also we said बहुत सारे challenges है, ये है वो है, but having said that बहुत बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी चीज़ें हम लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं उससे जल्दी हो जाती है. फॉर एग्जांपल हमें लगा था कि ये एक्टिंग का इतना सा पार्ट है या लाइट सेटअप है, इसको 1 घंटा लगेगा, बट समहाउ वी मैनेज टू, क्योंकि फ्लो में जा रहा है, क्रिएटिव एवरी वाज इन द फ्लो, आधे घंटे में हो गया. सो वी यूज़ दैट अर्नड एक्स्ट्रा 30 minutes टू डू समथिंग. लाइक इन स्पोर्ट्स you have extra benefits when you score, run rate is better, and similarly काफ़ी चीज़ें हम लोग की जल्दी भी हो जाती है. एक्टर कोऑपरेट करता है, टाइम पे है, वो अपने
So it's like a orchestra. Everything happening in tandem, in sync, things tend to get faster. And that's why, as a director, or maybe the HOD of each respective departments, if they are in sync towards each other, amongst each other, it just makes things faster. And that is where we buy time also, because we know we have to buy time. अगर यहाँ पे जल्दी निपट रहा है तो निपटाओ, टाइम पास मत करो. दैट इज वेयर वी डू नॉट रिलैक्स कि भाई अभी जल्दी हो गया, आधा घंटा चल चाय पी के आते. नो, लेट्स यूज दिस टाइम फॉर दैट अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस दैट माइट अराइज लेटर. सो मेरा फर्स्ट फिल्म तो जो था ब्रदर्स का, वो वैसे ही हुआ, जल्दी हो गया. थैंकफुली सब टाइम पे वहाँ पहुंचा, हम लोग निकल चुके थे वहाँ पे, और वहाँ पे गया, सेटअप वेटअप, एवरीथिंग वाज इन सिंक, एंड ज़्यादा वो नहीं था, ज़्यादा सेटअप की भी जरूरत नहीं थी, बिकॉज वो सन के टाइमिंग के हिसाब से ऐसा प्लान किया था कि वहाँ पे ज़्यादा लाइट्स का वो नहीं जाएगा. तो वहाँ पे करने के बाद एक्टिंग परफॉर्मेंस में थोड़ा टू एंड फ्रो हुआ, बट वंस द एजेंसी एंड माई सेल्फ वी बोथ वर सेटिस्फाइड, वी लाइक लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, आगे बढ़ते हैं. एंड देन वी रैप्ड इट अप वेरी फास्ट, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट सेटअप. हमको पता था हमारे पास एक ही सोर्स ऑफ लाइट है जो सन, अब उसको ही हमको मैनिपुलेट करके हमको उसके साथ मूव करना है. तो रिफ्लेक्टर्स से 20x20 के रिफ्लेक्टर्स थे, एवेंजर्स टेंस पे थे. एवेंजर्स टेंस इसके लिए थे क्योंकि हमको पता था कि सन कभी तो ऊपर जाने वाला है, और जो हमारे कंट्रोल, तो एवेंजर्स टेंस बेसिकली हम, हाँ, तो जैसे जैसे सन ऊपर जा रहा है एवेंजर्स टेंस ऊपर ऊपर जाते जा रहा है. तो स्टैंड 12 से 20 आई थिंक 18 फीट तक ऊपर जाता है वो. नहीं स्टैंड बहुत ऊपर जाता हाँ, है. 18 फीट बहुत ऊपर जाता है. सो 18 फीट ऊपर तक जाता है. वो एक पॉइंट पे उड़ने वाला था. हाँ, सो विंड, अभी हवा भी चल रही है, वो बड़ा सरफेस एरिया है, एरोडायनामिक फिजिक्स हो जाता है उसके साथ. सो हमने सब कुछ, रिफ्लेक्टर्स, बाउंसेस, ये सब पे ऑफ कोर्स लाइट्स रखे हुए थे, मिरर्स भी थे. मिरर्स भी रखे थे हमने, स्कीमर्स, बाउंसेस, ये सब इससे ही हम काम करेंगे. सो इसलिए हमारा काम थोड़ा फास्ट हो गया था. प्रॉब्लम सिर्फ हो रहा था जब अब ये इतने बड़े बड़ी चीज़ों को अनपैक करना, लोड करना, क्योंकि 500 मीटर के लिए भी उसको उठा के नहीं लेके जा सकते, आधा किलोमीटर के लिए भी उठा के नहीं लेके जा पाएंगे. इट्स अ ह्यूज थिंग. हाँ, तो उसको पैक करके, जितना भी कम कॉम्पैक्ट करके हम पैक करके लेके जाके वहाँ पे खोलना है, तो वहाँ पे कर लेते थे. Ray, this film has these films have something that the other two films that we talked about before do not, which is actors. Talk to me about directing actors. So, मुझे ना मेरे बचपन में एक दोस्त ने कहा था, बस एस्पायरिंग फिल्म मेकर तो था या नहीं पता नहीं, बट फिल्म में काफ़ी देखता था. उसके फैमिली में आए थे कोई फिल्म्स में थे. तो उसने मेरे को ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी, जब मैंने तब डिसएग्री की थी, शायद मैं अभी भी करता हूँ, बट उसने कहा था ना कि एवरी डायरेक्टर इज समवॉट ऑफ एन एक्टर, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डायरेक्ट. एंड आई एम लाइक, तब इट डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि नहीं मैं तो ये बोल के कर सकता हूँ, बट the easiest way of getting shit done is by enacting it. Imagine कि आप जो enact कर रहे हो, they can just visually do it better, more nuanced, with more range, and usually हमसे ज़्यादा सुंदर दिखता है. So better for the ads. So उनसे acting करवाना मतलब it is again it is like again आपको canvas मिलता है. Imagine an actor as the paintbrush. Of course, you're operating the paintbrush, but you have to make sure that it hits the right spot. तो वो उसको depth आएगा, तो उसको emotion आएगा, तो उसको feeling आएगा. So what goes into it essentially is a lot of rehearsals. जो again ये काफ़ी packed था. So हम लोगों ने रेकी के पहले we did auditions. So auditions में of course सबको script दिया, सबका enactment किया. हमने कुछ variations किया, अलग अलग variations record किए. सॉर्ट ऑफ रेकी पे हमने थोड़ा बहुत टोनैलिटी सेट करके रखा था, एंड वी वर लाइक जस्ट वर्क ऑन इट, सो दैट ऑन, क्योंकि हमको पता था कि ऑन द डे ऑफ द शूट इट इज़ गोइंग टू बी अ सुपर मैसिव चैलेंज. कोई भी सेट पे दो चीज़ें सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, लाइटिंग एंड एक्टिंग. बाकी सब इज क्विक. डायरेक्शन का काम इज ईजी, कट एंड एक्शन बोलना है. बाकी सारा काम इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो एंड बिकॉज दीज वर कॉलेज फिल्म्स, the other challenge was that I would have to work with some pretty new talent that does not have a lot of experience into acting. They fit the film well. So again, I think उनसे पहले मिलना, brief समझाना, genre समझाना,
एंड उनको जस्ट बताना कि दिस इज द आइडिया, दिस इज द ऑब्जेक्टिव दैट वी आर ट्राइंग टू डू, व्हाट आर वी ट्राइंग टू सेल थ्रू द फिल्म्स, उनको वो समझाना, टोनालिटी समझाना। एंड आई थिंक वी गॉट टू वर्क विद सम प्रीटी ग्रेट टैलेंट। वो बंदे का नाम क्या था? शान मदन। शान क्या मस्त बंदा था। लवीना लवीना भी थी, वो भी अच्छी एक्ट्रेस थी। So when on the day of the set वो आए थे, we just had to fine tune it for the camera set कि अभी energy कैसा रहेगा। Now ये तो individually हो गया। Now when there is a group of people, एक setting होगा, there is a setup and payoff, छोटे मोटे dialogues जिसमें context, conversation, emotions ये सब आने वाले थे। वो just अभी एक साथ club करके उनको rehearse करवाना था to get the beat right। एक बार में नहीं होता है। आई थिंक आपने BTS देखा तो आपको पता है काफ़ी मल्टीपल टेक्स इन टर्म्स ऑफ अगेन एक्टिंग टेक्स टाइम, सो द वे यू से योर डायलॉग, हाउ यू एक्सप्रेस इट, एंड बिकॉज ये लोग एक्टर्स हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं एज कम्पेयर टू द टू ऑफ अस, दे एक्सप्रेस विद देयर आईब्रोज, पता नहीं बहुत कुछ करते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं एक्टर्स। सो अगेन प्रैक्टिस इज द की। गुड एक्टर्स अंडरस्टैंड योर ब्रीफ फास्टर, गुड एक्टर्स विल गिव यू वेरिएशंस राइट देन एंड देयर, एंड आपको उसे फिर फाइन ट्यून करके मॉडिफाई करके उनको बताना पड़ता है। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर एंड अ ग्रेट मेथड एक्टर टू काइंड ऑफ शोकेस इट टू देम कि भाई दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। टोनालिटी हाँ major key. yeah and it's very hard to get right also sometimes मतलब in basically films में ज़्यादा ads में it's थोड़ा less of a एड्स में आई थिंक headache. आपके पास थोड़ा और फ्री वे होता है। yeah I think your film जिसमें so आपकी सारी फिल्म अप्रेजल उनका जो कोर पॉइंट है वो अप्रेजल का ही है, बट एक फिल्म है विच इज़ बेसिकली अ मोन्टाज ओनली, जिसमें एक बंदा है जो बस में जा रहा है एंड देन ही इज टेकिंग एन ऑटो एंड देन ही आई थिंक ही रीचेस ऑफिस और होम, और फिर ऑफिस की सीढ़ियों पे ऑफिस पहुंचता की है। सीढ़ियों पे उसको मैसेज आता है कि यू गॉट अप्रेजल। सो देयर इज दिस कैरेक्टर हु इज ऑफिस गोइंग, उसका अर्ली सेकेंड ईयर ऑफ जॉब दिखाना था उसको। अगेन कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट के लिए टाइम नहीं था, तो कास्टिंग भी उस हिसाब से की थी कि देख के कोई भी समझ जाएगा कि ये कैरेक्टर जो है ये फर्स्ट या सेकेंड ईयर ऑफ एग्जीक्यूटिव जॉब पे लगा है अभी अभी, जो चीज़ें खरीद भी सकता है, रेडी है, लेकिन किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है। वो सुबह से निकलता है, रिक्शा के धक्के खा रहा है, बस के धक्के खा रहा है, यू नो लोकेशन के हिसाब से ऑफिस की सीढ़ियों तक पहुंचता है, पसीने से रुमाल से पसीना पहुंचता है, एंड देन वहाँ पे उसको मैसेज आता है अप्रेजल। तो विदाउट एनी डायलॉग्स वो सब उसको उसी तरीके से मेरे फिल्म में सारे फिल्म्स में डायलॉग्स नहीं थे। Basically, I asked the question because I love the films that convey everything through the visuals. तो ये दोनों montage based फिल्म, दो montage based फिल्म्स थी आपकी। 2 मोन्टाज बेस थे और बाकी के 3 डायलॉग्स थे। डायलॉग्स भी ऐसे थे जो 3 से 4 लाइन में कन्वे हो जाए, बट जो डायलॉग बेस्ड थे कंपेयर टू रे के फिल्म्स, मेरे फिल्म्स में एक्स्ट्राज नहीं थे, मेन कैरेक्टर ही था। तो सिर्फ उसी कैरेक्टर पे मुझे फोकस करना था, तो थैंकफुली मेरे लिए एडवांटेज था वो। सो जो रीडिंग सेशंस हुए थे मेरे, उसमें कैरेक्टर्स का रेंज मैंने देख लिया था कि ये अगेन वहाँ पे एवरी डायरेक्टर विल हैव देयर ओन स्कूल ऑफ थॉट ऑफ चूजिंग एंड प्रेफरिंग थिंग्स, देयर इज नो वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। There are people who do not like enforcing anything or giving directions. They just want to give certain triggers and let them improvise. You know, different school of thoughts. अनुराग का अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है. I'm still kind of, I do not follow a particular school of thought, but then I have to trust the actor that I have in front of me. So मेरा तो एक ही है, मैं उसके सारा रेंज देख लूँगा। अगर मान लो वो थिएटर में करने वाला तो कितना लाउड जा सकता है, स्क्रीन पे मुझे कितना टोन डाउन करना है, तो मैं सिर्फ उसको उतना ही बोलूँगा कि मुझे ये जो तीसरा, मतलब उसको समझ में आ जाए कि तूने ये किया है ना, मुझे ये चाहिए। एंड देन आई ट्राई टू मेक हिम से इट अगेन एंड अगेन टिल द टाइम कि हाँ वो समझ गया कि मुझे ये, जैसे इसने बोला बीट, एक रिदम, एक टेम्पो, में उसको बोलता हूँ कि मुझे ये चाहिए। Now we should talk about how you created the traffic jam. आई थिंक रे बताएगा, रे का उधर का लाइन मेरे को पता है जो उसने BTS में बोला हुआ है कि जनरली इंडिया में ट्रैफिक के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना, ये इंडिया में ट्रैफिक में, बट उस टाइम मेरे को याद है ट्रैफिक क्रिएट करने में दिमाग खराब हो रहा था। एक तो प्रोडक्शन का ही ट्रक है। एक नहीं, एक ट्रक, लाइट ट्रक है, प्रोडक्शन ट्रक है, मेरा गाड़ी है, हाँ, कुछ 2-3 रैंडम ऑटो वाले हैं। यस,
हाथ गाड़ी है। हाथ गाड़ी है। अब ये कि सब में अब और भी गाड़ियां हैं जिसमें और भी एक्स्ट्रास बैठे हुए हैं। तो जितनी गाड़ियां दिख रही हैं, बस ड्राइवर है, बस में सब में लोग बैठे सब में लोग बैठे हुए हैं। ट्रैफिक जाम। हाँ, कितना टाइम लगा? ट्रैफिक जाम को बहुत टाइम लगा। सो यहाँ पे सुधांशु केम इन, ही न्यू वी वर रनिंग लेट, सो मैंने उसको कह दिया था कि ट्रैफिक जाम शायद, ही वाज सपोज्ड टू सेट अप द ट्रैफिक जाम। द आइडिया वाज कि सो अभी क्या होने वाला था ना, ट्रैफिक जाम दो सेटअप्स के लिए यूज होने वाला था। द फर्स्ट वन वुड बी द वाइड एस्टैब्लिशिंग शॉट जहाँ पे सब कुछ पैक्ड एंड ये सब दिखना चाहिए, एंड देन देयर वाज अ राइडिंग शॉट की the scooter is being ridden through the traffic jam, so we had to create a channel also through the traffic जहाँ पे it is safe enough to ride, but again लगना चाहिए कि वो जाम है। So उसमें एक और चीज, ट्रैकिंग भी करना था उस ट्रैफिक जाम में, तो उसके लिए भी थोड़ा रास्ता बनाना था। या आई थिंक सबसे पहले तो हम लोग गाड़ियाँ एक एक, सो सुधांशु ने एक रफ लेआउट करके रखा था, बट जाम नहीं लग रहा था। इट वाज अ वेरी, ऐसा लग रहा था अब यूएसए के हाईवे पे हो। अगेन आप ट्रैफिक जाम आप क्रिएट नहीं कर सकते, इट इज जस्ट 200 IQ, too many 200 IQ people in one single space can create a traffic jam. With egos. With egos, with very big egos, correct. So फिर हमने थोड़ा chaos use किया, सब गाड़ियाँ इधर उधर shuffle की, टेढ़े मेढ़े tried recreating best, and फिर लोगों को बिठाया, लोगों को थोड़ा agitated, भाई ट्रैफिक जाम में हो, कुछ तो action करो, and yeah, it turned out decent. With a channel in between जो दिखता नहीं है until you start using and shooting through it. और इसका एक साइड स्टोरी है कि आई मीन आई एम सेइंग दैट विद अ वेरी हैवी हार्ट, मुझे भी चाहिए था ट्रैफिक थोड़ा सा। इतने सारे व्हीकल्स अगर है प्रोडक्शन सेट पे, तो मुझे भी एक फिल्म में मैं प्लेस करने का प्लान था। इतना हैवी ट्रैफिक जाम नहीं, बट एक सिग्नल पे आके एक लाइट ट्रैफिक है, रुके हैं बेसिकली सिग्नल पे, ट्रैफिक नहीं है, लोग रुके हैं। अब सिग्नल पे तुम्हारा ही एक व्हीकल कैरेक्टर आगे रुकेगा तो वियर्ड लगेगा ना, पूरे रास्ते में एक अकेला है। मैं वो 2-3 व्हीकल्स के लिए इनके पास से भीख मांग रहा था, इनके टीम से भीख मांग रहा था, भाग रहा था यहाँ से वहाँ, कि मेरा जो दोनों कैरेक्टर है, एक दूध वाला साइकिल वाला जाता है और एक अपना, बस 2 ही रेडी थे। रिहर्सल भी करके हो चुका था, मैं बोला भाई 3-4 व्हीकल दे दो, पार्क करके फटाक से करके वापस देता हूँ। सुन ही नहीं रहे, It's difficult. इग्नोर कर रहे हैं भाई। उस टाइम पे तो मुझे जानते भी नहीं थे लोग, मैं आगे खड़ा हूँ ऐसा, भाई इधर पूरा टीम खड़ा है, हम लोग ये रोड पे शूट कर रहे हैं, विंजी उसके टी जंक्शन पे शूट कर रहा है, बगल में एक so इस तरफ। you could see विंजी सेट, विंजी को मैं एक दूसरे को देख सकता है, मैं खड़े होके वहाँ पे उनको स्टेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को देख ही नहीं रहे, मैं हुई नहीं वहाँ पे। सबको अपना अपना। हाँ नहीं नहीं, सीन था कि विंजी का सेट भी लेट चल रहा था क्योंकि ट्रैफिक वहां से यहाँ पे आगे लगने वाला था। सो आप लोगों का पता नहीं, आप लोग हम लोग सेम टाइम पे वहां कैसे पहुंचे वो पता नहीं, क्योंकि वो अलग क्लियरली अलग अलग टाइम पे होना चाहिए था वो, बट वंस वी वर देयर वी वर लाइक As सब you said, चाहिए सब। जब ट्रिकल डाउन होता है तो चीजें ये भी हुई, तो और ऐसी हुई कि वो सब coincidence कि चाहिए, एक साथ ही बस, ट्रैफिक भी गाड़ी। हो रहा है, एक साथ ही मेरे सीक्वेंस को भी चाहिए, Yes. क्योंकि मेरे उसके बाद वाला सीक्वेंस टाइम डिपेंडेंट, सन डिपेंडेंट था। वो जो बस स्टॉप था वो इवन गोल्डन लाइट में ही शूट पॉसिबल था, और आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ना वो बस स्टॉप पे से लाइट कटने वाला था, और वो हो गया तो फिल्म डेड हो जाएगा, फुल फ्लैट शैडो में चले जाएगा। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सन के साथ मैं नेगोशिएट नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। और इसके लिए मुझे हमारे साथ भी देयर वाज नो अगेन दैट इज अनदर स्टोरी कि सन से भी नहीं कर पा रहा था और ये लोग भी नहीं हेल्प कर रहे थे। अगेन इन लोग भी अपने चैलेंजेस में फंसे हुए थे, बट वो टाइमिंग वो एक ही साथ आके ट्रैफिक सिग्नल या व्हीकल का रिक्वायरमेंट हो गया। Yeah, तभी फिर stressful. शिफ्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके फिर हमने बोला कि यार ये तो नहीं आने वाला, शिफ्ट फिर थोड़ा सा हैवी हैंडेड होके फटफट एंगल ऐसा नीचे कुछ नहीं, किया। अच्छे फ्रेम्स निकाल लिए तो पता भी नहीं चलता ट्रैफिक चाहिए। हाँ तो वो थोड़ा अगेन एक्सपीरियंस काम आया कि वहाँ पे एक काम करते हैं, ग्राउंड दिखाते ही नहीं है, तो मैंने सीधा कैमरे को नीचे ले लिया, लो एंगल, पीछे इस एंगल पे लिया कि सिर्फ एक कॉम्पोजिशन वाइज जो ऊपर नेगेटिव स्पेस होता है वो रहे और वो बंदा रहे, तो उसको सिर्फ आगे पीछे करके हमने उस पर अच्छा लाइट जहाँ पे आता है वो रखा, और टाइट्स में मिड्स में ही खेल लिए, और जहाँ पे वो साइकिल जाता है उसको ऐसा फ्रेम किया कि रास्ता और फुटपाथ के बीच में ज़्यादा गैप ना हो, ताकि अगर वो कमिट भी हो तो ऐसा लगे कि चीजें चल रही है। काफी स्मार्ट हो गए हम लोग। स्मार्ट नहीं हाँ, हुआ तो मतलब- फिल्म में एज अ फिल्म मेकर फेल हो जाओगे ना ऐसा। तो वहाँ पे बिना ट्रैफिक दिखाए उसको वो जो फील देना था, जो मैसेज वो अचीव करने का, क्योंकि वो करके फिर हम लोग तुरंत निकल गए अगले फिल्म के लिए। सो इसके बाद ऑफ कोर्स इसको गोल्डन लाइट में वो शॉट चाहिए था जो लद्दाख के लिए निकल रहा था बस स्टॉप पे। सेम वो अगेन प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा, हम लोग पास पास में ही थे, तो हमको पता था कि सन से हमको बैकलाइट मिलने वाला है।
हम लोग एकदम ऑपोजिट लाइटिंग यूज अपोजिट लाइटिंग हो तो हम लोग को पता है ठीक है हम लोग बैकलाइट सन का यूज़ करेंगे कि थोड़ा डिफ्यूज थोड़ा कम भी हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ बाउंसेस यूज़ करेंगे बट हम लेट चल रहे थे जब तक हम वहाँ पे पहुँचे दिख रहा है कि सन अब शायद 15 मिनट में बिल्डिंग के पीछे चले जाने वाला है जो प्लान किया था वो नहीं होने वाला है जो लाइटिंग सोचा था वो नहीं होने वाला है बट एक बहुत ही वियर्ड चीज हो गया था, आपको याद है कि नहीं? सो एक बार जब सन नीचे जाना शुरू हुआ ना, हाँ। तो विंजी लोग जहाँ पे शूट कर रहे थे ना, वो कांच के बिल्डिंग से ना रिफ्लेक्शन आना शुरू हुआ, यस यस आई रिमेंबर which was random. So- It's like, you know, extra time, guys. हाँ। You have had a hard day today. तो सर्कल याद है सर्कल में बना सर्कल हुआ का है फंडा, yes. तो वो बिल्डिंग भी थोड़ा सर्कल में बना हुआ है तो सन हमारे लिए तो सन तो चला गया लेकिन वो बिल्डिंग पे वो कर्वेचर का कॉन्केव ये सन वहां पे हिट हो रहा है रिफ्लेक्ट सीधा यहाँ पे हमारे सेट पे आ रहा है Very interesting. बट ऑफ कोर्स वो भी ज्यादा टाइम नहीं था ज्यादा time नहीं। बट वो सिर्फ- लुक देखो 3K का सहारा काफी है हाँ। सो डिवाइन इंटरवेंशन भी होते हैं ऐसे गुड लक भी होते हैं सो दैट्स व्हाई वी कीप ऑन एट इट सो दैट बिकॉज वी नो थिंग्स विल गो अगेंस्ट यू एंड समटाइम्स थिंग्स विल गो फॉर यू प्लान किया था मैंने, Plan किया। वो ही idea कि उधर ये कांच के जो मिरर्स है वो क्लाइंट को यही बोलना है प्लान किया reflect था वो मिरर करेंगे। को प्लान था कि इफेक्टिवली यूज करेंगे सो अब वहां पे टाइम क्रूशल तो हो गया है ठीक है अब हमको जो मॉडल चाहिए वो मॉडल वहां पे पहुंच ही नहीं रही है ठीक है जो कैरेक्टर हमको चाहिए वो पहुंच ही नहीं मुझे याद है मैंने रे को बोला रे गाड़ी निकाल हम जाएंगे वैनिटी मैन तक Oh, yes, हम उस मॉडल को लेकर आते आएंगे हैं। एक पॉइंट पे we are So just she was waiting. on the set, but she was not. बेस बेस coming. She was on the रिमेंबर वो base. सर्कल में अच्छा, बेस है एक अलग जगह पे, सो हम लोग सर्कल का अलग जगह पे शूट कर रहे हैं एंड सर्कल इज वेयर योर कॉस्ट्यूम्स मेकअप एवरीथिंग इज हैपनिंग देयर, दैट इज योर बेस। फिर हम गए वहां पे बेस पे गए सुधांशु उधर ऑलरेडी खड़ा सुधांशु था मिल गया। कि भाई ये निकल ही नहीं रही इसका स्टाइलिंग बचा है ये वो सुधांशु सीधा आता है मेरे पास और बोलता है आई एम डूइंग एवरीथिंग आई कैन, इट इज नॉट माय फॉल्ट। हम लोग ने लिटरली आई थिंक किसी ने तो फोटो निकाला हुआ है हां हम लोग ने बोला तू जैसे भी है तू अब भी गाड़ी में बैठेगी और हमारे साथ Right तू now. चलेगी कॉस्ट्यूम चालू से चिल्लाते हुए आ रही है कि नहीं नहीं उसका कॉस्ट्यूम पेंडिंग है हाँ, फर्क ही नहीं फक इट पड़ता। वी आर गोइंग हम लोग वी डोंट हमारा हैव हो लाइफ गया है। हाँ, उसको सीधा गाड़ी में बिठाया, चलो मैडम सेट पे आ जाओ, लेट्स रोल कैमरा एक्शन। अच्छा. भाई टाइम ही नहीं है, अब इसके बाद अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में कौन कॉलेज जाता है, नाइट कॉलेज थोड़ी ना है। सो यू हैव टू टेक हार्ड कॉल्स हार्ड स्टॉप कि अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिजाइन हो आर्ट प्रॉपिंग कुछ भी कर रहा हो आफ्टर अ पॉइंट द लाइट will dictate everything because we have to finish the shoot. Your perfection may not be achieved in the given point of जो भी frame of time है आपके पास, लेकिन उसको finish करना हमारे लिए सबसे top priority रहता है. So वहाँ पे भी हमको जैसे hard calls देने कि जो जितना हुआ है वहाँ से हट जाओ और continue करो. Why would somebody give you a, like, this is a challenge, right? To complete to shoot 12 reels in one day. One word. Budget. Everything is influenced and driven by budget. Time is money. When you don't have money, you don't have time. हाँ, मेरा सवाल ये है, like this, because 2 दिन दे दो, शूट बेटर होगा, हमको बेटर टाइम मिलेगा, 2 दिन का लाइट मिलेगा, शूट बेटर होगा कि नहीं, I'm not शूट sure. बेटर होगा, like that, शूट बेटर होगा ना, मतलब शूट so- होगा कामली, नहीं, सो ये नहीं होगा कि अरे एक्टर को लेने जा रहा हूँ मैं. नहीं, सो आप जब प्लान करते हो ना, प्लान हमेशा हर चीज बेस्ट के लिए, अगेन वो एक्टर को हम लेने गए बिकॉज द कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट वाज वेरी एडमेंट कि आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट शी लुक्स हर बेस्ट. शी वाज डूइंग हर जॉब. एट वन पॉइंट आई हैड टू से फक इट, इट्स ओके, आई गेट इट, बट अभी टाइम नहीं है भाई, अभी तो करना ही पड़ेगा. इट इज हो गया, जो आपने किया सही है, नाउ वी विल जस्ट प्रोसीड विद इट. तो 2 दिन मतलब हम लोग अभी क्या कर सकते थे इज दैट one unit could have still shot both the films over 2 days. Yes. It would have still been the same. That is the ideal scenario, right? कि मतलब if you think कि हम 12 फिल्म नहीं कर रहे, 6 फिल्म कर रहे हैं, I feel they were very much doable. वरना कभी हाँ नहीं बोलता मैं ऐसा. Of course, किसी को भी उड़ता तीर नहीं बोलना चाहिए ना. उड़ता भी नहीं लेना चाहिए उड़ता तीर बेस्ट नहीं बेस्ट. लेना चाहिए I think बट आई मीन सॉरी मैं अभी डिसएग्री करूंगा बट वो 2 दिन करने का जो बजट है वो पास ही नहीं होता. क्या करोगे तुम करने के लिए तो हाफ डे में भी कुछ ना कुछ कर लोगे बट आपके शॉट्स यू विल फाइंड अ वे टू डू इट. दैट इज नॉट अ केस. और क्रिएटिवली यू विल से कि दिस इज द बेस्ट वी कैन डू.
This is us trying our best to give more worth for the money that we are getting, for the value that they are putting. So the idea was always कि एक यूनिट सारे फिल्म्स करेगा because वही प्लान था. Now we were like जैसा विंसे कह रहा to add more worth. How do we, एक तो रील था so it was challenging. So we had to be very sure about where are we shooting, which is where मगरपट्टा came in. Now shooting in मगरपट्टा मतलब हम लोग ने रास्ते ब्लॉक वॉक कर दिए थे. Like there was traffic that was being diverted because we were shooting in parts. वो main circle was being cordoned off to the common public so that we can shoot there, which comes at a very expensive price. Of course, अगर हम कोई और जगह पे करते तो हम लोग 2 दिन में आराम से सब कुछ कर सकते थे. But the idea was that क्योंकि ये reels है, क्योंकि ये TVCs है, a good looking backdrop will only add value to this इतना छोटा piece of what? Canvas. Canvas. हाँ, canvas पे. Oh, it's a canvas we have to paint. We are Canvas. painters. We went to and fro a lot with Creative Khichdi because they are again, you know, experienced agencies. इन्होंने काफी लोगों के साथ काम किया है, and they were also like कि एक दिन में कर पाएंगे क्या? Also, they were also very well aware कि हाँ, we have this certain amount of budget. If we want to get Magarpatta, we can only shoot for 1 day. If we have to get some other location, then we can figure out कि कैसे हम 2 दिन में आराम से फैल के कर सकते हैं. And does that fulfill all our requirements? Now there are so many variables coming together, and fulfilling each other's boxes is the key, and that's where you take the call. So we decided एक दिन मगरपट्टा लेंगे, 2 यूनिट करेंगे, फट 12 फिल्म्स निकाल देंगे. सो पेपर पे तो ये प्लान परफेक्ट है जो हमने किया. इट इज जस्ट अनफोर्सिन So many things. variables. बट हर बार यही है ना, लाइक Yes, there's a- आप वही बोल रहे थे ना कि प्री इज ग्रेट, प्री में जितना strong हो, उतना प्री तो better है. होता ही है. मतलब ऑफ कोर्स लाइक सीरियस फिल्म मेकर्स हर फिल्म्स में जब शॉर्ट डिविजन हुआ था, हर फिल्म में देयर वाज बफर बिल्ट इनटू इट. बफर फॉर योर लाइटिंग सेटअप. आप लाइटिंग को आपको 1-आधा घंटा लगेगा, बट उसमें भी बफर था. आपका ट्रांसपोर्टेशन का बफर था, आपका एक्टिंग का बफर था. सो आई न्यू फिल्म्स जो मुझे पता था कि ऑन सेट विल नॉट टेक मी मोर देन 90 मिनट्स टू फिनिश फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. But they had buffers for about 2 घंटा, 1.5 घंटे का बफर था. 2.5 one film, 2.5 one film, 2.5 one film, 2.5 one film, ऐसा करके खत्म होने वाला था full day. So there were buffers baked in throughout. And of course, eventually you start eating up those reserve. Buffer होना बहुत जरूरी है because कुछ भी हो सकता है. You account for variables. You always account for variables. So you got 1 day, you shot everything, but did it end on that day or did it not? So $1 million question. so हाँ $1 million question. $1 million क्वेश्चन. क्या हमने खत्म किया गेम? तो अपना शूट कैसे चालू होने वाला था? ट्रैकिंग शॉट से. अब हमको फिल्म खत्म करनी थी, हमने फिल्म तो खत्म कर ली. जब तक ट्रैकिंग शॉट्स की बारी आई, हम तो लेट हो चुके थे. इन्होंने आई थिंक इन्होंने फिर भी कुछ ले लिया था. बर्गमैन के ट्रैकिंग शॉट्स. हाँ वीस्ट्रॉम नहीं, बर्गमैन का ही मिला था आई थिंक. बर्गमैन और एक और कुछ 2 बाइक्स के इन लोग ने मस्त मगरपट्टा में इनको मिल गया था. दे मेड अप सम वेरी गुड टाइम इन द लेटर हाफ. So बीच में वो सन को वो बस स्टॉप तक आने तक और उसके बीच का जो टाइम था उसमें एक राउंड मारा के ऐसा स्मार्टली, तब तक वो मगरपट्टा का भी बाउंस और वो जो करना था सेटअप वो चल रहा है. तो उसमें फटाफट एक राउंड, क्योंकि अगेन वहाँ पे एक्सपीरियंस कम आया, इतना ट्रैकिंग किया लाइफ में, इसका 2 राउंड तो करके आ सकता हूँ. बैठे किया, हो गया. ये आपने ट्रैकिंग कितना टाइम के लिए किया? ट्रैकिंग 20 मिनट्स में कार में बैठना, चलना, उसको गाइड करना, इशारे करना, वॉकी से बात करना, राइडर को सही स्पीड पे लाना, चार्जिंग शॉट्स, वो शॉट्स, लो एंगल, हाई एंगल, टेली, वाइड, मिड, सब मिला के उसमें से ऑब्वियसली 20 मिनट्स रोल टाइम ही था. 20 मिनट्स में शूट उतना सा पार्ट एक बाइक का ट्रैकिंग राउंड खत्म करके आया जिसमें ये सारे शॉट्स निकाले. आई रिमेम्बर ये लोग जब ट्रैकिंग करने जा रहे हैं तब हम वो एक्ट्रेस को लेकर जा रहे हैं. वी आर क्रॉसिंग इट. हम लाइक हाँ, यहाँ पे ट्रैकिंग व्हीकल जा रहे हैं, यहाँ पे एक्ट. ये तो हमें भी करना है गाइस. इसका क्या होने वाला है? एक और फिल्म बाकी है हमारी. तो हम मॉडल को लेके जा रहे थे. हमारी फिल्म अभी भी खत्म हो ही रही थी, अंधेरा हो गया था, लाइट जा रहा है दिख रहा है. तो हमको पता चल गया था कि हम शायद हमारे पैक शॉट्स नहीं हो पाएंगे. जिक्सर हम शायद और भी बाइक से पैक हमने शॉट्स सारे बाइक्स का हमके हाँ. फिर हमने ऑफ कोर्स उस दिन नहीं हुआ, तो हमने नेक्स्ट मॉर्निंग छोटा स्पिल ओवर दिया. 6:30 बजे एक्टर्स नहीं चाहिए थे, सिर्फ राइडर चाहिए था, सिर्फ राइडर्स और बाइक. तो हमको प्रिसीजन राइडर्स की जरूरत थी और बाइक्स की जरूरत थी. तो हमने बहुत ही लीन सीधा 200 से 10
आई थिंक 10 लोगों की 10 टीम लोग चली गई की थी, टीम हाँ। चली गई थी। आपका जो क्रू था उसमें आपका सिर्फ एवनिस था? हाँ, पर अलग अलग कलर्स थे। अच्छा, एवनिस के अलग अलग यस, अलग अलग कलर्स थे। मल्टीपल कलर्स और 6 फिल्म्स थे ना, 6 फिल्म में अलग अलग बाइक्स, अलग अलग सिचुएशंस, किसी में 2 लोग बैठे, किसी में 1 लोग बैठे, सो हमको वो दोनों चीट करना पड़ा कि लड़का लड़की बैठा है, लड़की बैठी है, लड़का बैठा है, सब वेरिएबल कॉम्बोज लिए। फिर इनके फिल्म के लिए जिक्सर के कुछ शॉट्स चाहिए थे। दूसरा कौन सा बाइक था? बर्गमैन का था, बर्गमैन, आपके पास? एवनिस, जिक्सर और वीस्ट्रॉम। वी स्ट्रॉम के भी अपन ने वो लिया था एंड स्लेट्स। कितना टाइम लगा बाकी 3 बाइक्स शूट? 5 बाइक्स, 5 बाइक बिकॉज़ डिफरेंट कलर आल्सो। हमने 1 घंटे में खत्म कर दिया है, 1 घंटे में। ठीक है, तो मेजर नहीं था। एक्सपीरियंस ब्रो। हाँ, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस। People don't realize how much effort goes into tracking, because it's sort of like a brave thing to do, because वो लटक के आई थिंक shoot बूट करना। ट्रैकिंग इज शुड बी बैंड। I mean, फिर हम लोग क्या करेंगे सर? हम कैसे पैच वर्क हम लोग करेंगे? कैसा पैच वर्क करेंगे? But boot tracking सही में like it looks dangerous. इट इज It is, it is. डेंजरस। make comments. मतलब मैंने देखा है, मेरे बाजू में ही डीओपी हम कुणाल वोक्सवैगन के लिए शूट कर रहे थे, और कुणाल ने पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई ड्राइवर साहब आप प्लीज एक्सेलरेट जोर से नहीं करना, झटके से नहीं करना, जो भी करोगे आप ग्रेजुअली करना। तो शूट के स्टार्ट में आई रिमेम्बर कि 2 बीटीएस वाले थे वहां पे जो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो फुटेज कहीं ना कहीं तो है। उसने एक्सेलरेट किया, ये बंदा सीट गाड़ी आगे निकल गई, कुणाल वहीं पर आ गया। हाँ, यस। फिजिक्स और कुणाल नीचे। कुणाल नीचे? सीधा सा। Not good. So it is dangerous. It's really bad. Of Because course. the injury can नहीं, and by default your do a lot of instinct damage. is to protect the gear, so you're not even thinking about yourself. So I think कुणाल भी गया, जब मैं गिरा कुणाल is like हाँ मैं बस कैमरा बचा रहा हूँ क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है, इस पे शूट करना है। But then some of the injuries can stay with you for a lifetime and it can cripple you a lot. Like it can You can die. mobility Boot tracking issues. Boot tracking kills. lot. So what did we shoot on? वी शॉट ऑन सोनी FX3। हमारा दोनों सेटअप FX3 था, और लेंसेज में बताऊंगा नहीं, Special इट्स lenses. सीक्रेट, Custom made. कस्टम मेड। Russian. Again, every decision, light, equipments, bounce, everything. The decision was taken because of the nature of the shoot. We may not prefer the same setup everywhere. Wherever possible, we up the game. We remove some. बट हम आई थिंक हम सोनी के आसपास ही घूम रहे हैं Always. ऑलवेज। सोनी, I like Sony. Sony best. I think Sony के बाद आरी. सोनी के बाद आ रही, Similar. Red सोनी के बाद सोनी वेनिस। is same. Venice we Really some didn't get same. to use as much as Ari. Ari is like talent tested, so it's a no-brainer. After Sony, if you do like, let's go with Ari. Yes. There is a very funny clip also of both of you in the back of the car. तो रोज हमको जब ट्रैकिंग करने नहीं मिला, तो रोज का है। हाँ जब ट्रैकिंग करने नहीं निकले थे मिला। ना तो बहुत सैड लग रहे हो आप लोग, और फिर ऐसा। हाँ क्योंकि हमें तब वॉकी का कॉल आता कि गाइस नंबर प्लेट में चेंजेस है, आप लोग वापस आ जाओ। वो स्टार्ट था ब्रो, स्टार्ट। हमें like yeah let's go। हाँ, मैं दो हारे हुए Explanatory. सुबह 7:30 बजे रहे हैं, आप क्या करना है? वो ऐसा ना घर चलना है क्या? सो के उठा, और फिर भी नींद अभी बहुत बहुत आ रही है। हम एक्साइटमेंट में निकले ब्रो, ठीक है सही है, स्टार्ट हो गया, और हम लोग गए। हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। हम जल्दी पहुंच हम ही जल्दी जाते पहुंच गए हैं। हम थे। हमेशा जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, cool. On that note, Yep. it was great talking to you guys. As always, Amol. As Thank always. you. As always. It was great. Thank you very much. Witnessing the Thank you. experience. This marks the end of the 3rd episode. अनदर एपिसोड बोलो, Another अनदर episode. अनदर। So this marks the end of another episode of the TC. ये कट नहीं करना है। of the TCU Crew podcast. We'll see you next time. Until then, stay safe, ride safe, shoot safe. We'll see you next time. Bye bye. Bye. सही है, very nice. Oh my god, come on कुछ guys. नहीं, मेरा तो हो क्या हो चुका रहा है? है, कुछ नहीं हो रहा है। उसका नहीं हुआ, मेरा हो चुका है। सही है।